خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پادری اعجاز یوسف کا سلام۔ پروگرام آفتاب صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہوشنا ٹیلی ویژن ہمیشہ ہر صبح آپ کے ساتھ خدا کے مقدس کلام کی برکت کو بانٹتا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے پورے دن کا آغاز کرتے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس برکت کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں۔ ہوشنا ٹیلی ویژن ایک خدا کی خاص برکت کی صورت میں ہم سب کی زندگیوں میں کام کرتا اور ہمیں خدا کے کلام سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے لیے ہر روز خدا ہمیں اپنے خدام کے وسیلہ سے ایک نئے موضوع پر سیکھنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں جن کا نام پاسٹر عزیز صدیق صاحب ہے، اور وہ ڈیپر لائف بائبل چرچ کے ساتھ کوئٹہ میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں جو مختلف علاقوں میں اپنی ٹیچنگ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم پروگرام آفتاب صداقت میں پادری صاحب کو ویلکم کہتے ہیں اور خدا ان کے شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ وقت عطا کیا تاکہ ہم خدا کے مقدس کلام کو سیکھیں۔ سو آئے ناظرین، میرے ساتھ خدا ان کے مقدس کلام کی تلاوت کے لیے اپنی بائبل مقدس کھولیں اور خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں آپ سب کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کے مقدس کلام کی یہ تلاوت ہم سب کی زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ آئیے سب اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں، اپنے آپ کو خدا کے مقدس کلام کے لیے تیار کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر عزیز صدیق صاحب اس دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، حی القیوم، قادر مطلق خدا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند پاک خدا، اس ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے خداوند قادر مطلق خدا، میں تیری برکت کو چاہتا ہوں، اس کی ساری ٹیم کو برکت دے، اور آج خداوند جب ہم سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے گزرتے ہیں تو ہم سبوں کو کثرت کی برکت دینا، جتنے لوگ اس کلام کو سنیں تجھ میں خداوند برکت حاصل کریں اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کا شکر ہے عزیز ناظرین کہ خدا کے خادم بڑی دور دراز سے آج ہمارے شیخو پورہ میں اس پروگرام کے لیے آئے۔ ہم پادری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب، آج کی آیت بہت زبردست ہے جس کا آج چناؤ کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کے مقدس کلام میں سے اس کے تحت سکھائیں۔ آمین۔ شکریہ پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ یقیناً جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے بائبل مقدس میں سے 2 پطرس اس کے 3 باب کی 18ویں آیت میں، جس میں لکھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اس کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا کا بندہ پطرس یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑے خداوند میں۔ جتنے لوگوں نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لیا ہے، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر وہ بڑھ نہیں رہے تو اس کا مطلب وہ بونے رہ گئے ہیں، ان کو کوئی بھی کٹی ہوئی چیز بڑھ نہیں سکتی، اور وہی بڑھتا ہے جو جڑ میں مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر ہم چرچ تو جا رہے ہیں لیکن بڑھ نہیں رہے تو خطرناک بات ہے۔ جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے، وہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ بڑھے، اور اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو ایک خطرناک بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پھر چھوٹا قد کا رہ جائے گا۔ اکثر لوگ اسے چھیڑتے ہیں، بونا ٹھگنا کے نام سے چھیڑتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کوئی شخص، اس نے توبہ تو کر لی، سٹارٹ میں بپتسمہ بھی لے لیا ہے، چرچ جانا بھی شروع کر دیا، لیکن اگر وہ بڑھ نہیں رہا تو یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے پطرس چاہتا ہے، خدا کا بندہ پطرس ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم بڑھیں خدا کے فضل میں، اور جیسے جیسے ہم بڑھیں گے تو ہم ترقی کریں گے، اور مردہ شخص بڑھ نہیں سکتے، مردہ لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے، اور اگر کوئی درخت کٹا ہو تو وہ بڑھ نہیں سکتا، ایسے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے پہلا پطرس 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہر طرح کی بدخواہی،
बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर भी हम देखते हैं लिखा है कि हर किस्म की बदख्वाही को, हर किस्म की फरेब को, हर किस्म की रियाकारी को, हसद को, गुस्से को, तफिरकों को, जुदाइयों को, बिदतों को, बॉक्स को, नशाबाजी को, नाच रंग को अपने दिल से दूर करके नौज़ाद बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, जो बिल्कुल अभी छोटे हैं, जो दूध पीते हैं, उनकी तरह खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक हों। और इसके जरिए से हम बढ़ते जाएंगे, खुदा के कलाम के मुश्ताक हों, हम खुदा के कलाम के वसीला से बढ़ते जाएंगे। जब कभी भी हम खुदा के कलाम को नोश फरमाते हैं तो हमारी जिंदगियों में तरक्की आती है और हम बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। ये उसी वक्त बढ़ेंगे जब सच्ची तौबा करेंगे। बिल्कुल, वो शख्स बढ़ नहीं सकता अगर उसने तौबा नहीं की, अगर रुकावट हो जाती है। जी जी बिल्कुल, उसने अगर गुनाह में वो जिंदगी गुजार रहा है तो वो बढ़ नहीं सकता। जी, जैसे हमने दरख्त की मिसाल देखी, जैसे हमने जानवरों को देखते हैं कि अगर जानवर भी वहां पर मर चुके हैं तो वो बढ़ नहीं रहे। इंसान अगर मर गया है तो वो बढ़ नहीं सकता। दरख्त अगर कट गया है तो वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और 4थी आयत में, जी यूहन्ना की अंजील 15वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुझ में और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह में कायम नहीं है, जिसने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा, वो फल नहीं ला सकते, वो बढ़ नहीं सकते। और जैसे हमने देखा, मुर्दे बढ़ नहीं सकते, मुर्दे सड़ सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमें बढ़ने के लिए गुनाह को छोड़ना है, और अगर गुनाह नहीं छोड़ा तो हम बढ़ नहीं रहे। इसका मतलब हो सकता है 20 साल से, 10 साल से, 30 साल से हम चर्च तो जा रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे, और ग्रोथ रोने हैं, छोटे कद के हैं, छोटे रह गए हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया, मुकाशफा की किताब को हम देखते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब जब हम देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है, मुकाशफा की किताब 3रे बाब की हम पहली आयत से पढ़ते हैं। लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। देखिए, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे कामों को जानता है। गो हम चर्च जा रहे हैं, हम कलीसिया में भी एक्टिव हैं, गिटार बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दाइयकियां दे रहे हैं, चंदे दे रहे हैं, चर्च की सफाई कर रहे हैं और दिखावे के तौर पर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमारे कामों को रूहानी तौर पर ग्रोथ जानता है। वो रूहानी तौर पर ग्रोथ नहीं कर रहा। जिस तौर पर पतरस ने कहा कि बढ़ते जाएं, और वो शख्स बढ़ ही नहीं सकता, वो देखते हुए नहीं देख रहे, वो कलाम तो पढ़ते हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। मत्ती की अंजील में लिखा है, वो देखते हुए ना देखेंगे, वो सुनते हुए ना सुनेंगे, क्योंकि उनके दिल पर चर्बी छा गई है। और बढ़ने के लिए रूहानी जोश होना चाहिए, रूहानी जज्बा होना चाहिए। जब कभी हम कोशिश करते हैं गुनाह को छोड़ने की तो हम छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। और जब हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, नामुमकिन नहीं है कि हम छोड़ नहीं सकते। जी, ये काम नामुमकिन नहीं है। गुनाह को हम छोड़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के कानून सख्त नहीं है जिन पर अमल ना किया जा सके। बेशक खुदा के कवानीन बड़े नरम हैं, बड़े रीजनेबल है। वो कहता है कि मोहब्बत करो, चोरी ना करो। सब लोग जो है वो अक्सर हम पुराने अहदनामे के ताल्लुक से तो सुनते ही हैं कि वो बहुत सख्त अहकामात थे, जी, और उन पर अमल करना इंसान के बस की बात नहीं है। तो आपने भी बहुत ज़बरदस्त हमें ये ख्याल दिया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुदा के अहकामात उतने सख्त नहीं है कि इंसान उस पर अमल ना कर सके। ये हो नहीं सकता कि हुक्म खुदा ने दिया और वो पूरा ना हो सके। जी, यकीनन सारे अहकामात जो भी खुदावंद यीशु मसीह ने दिए, खुदा ने दिए, वो सारे पॉसिबल है और मुमकिन है, वो हम कर सकते हैं।
اور جب کبھی ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، لکھا ہے امثال کی کتاب، جب امثال کی کتاب 14واں باب میرے ساتھ دیکھیں تو 14ویں باب کی 14ویں آیت پڑھتے ہیں۔ امثال 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، برگشتہ دل اپنی روش کا اجر پاتا ہے اور نیک آدمی اپنے کام کا۔ بے شک۔ جو برگشتہ ہے وہ برگشتہ کاموں کا اجر پائے گا، وہ اس کی روشوں کا اجر پائے گا، اور جو نیک آدمی اپنے کام کا اجر پاتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، جو خدا کے کلام کے تابع رہتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، وہ روحانی طور پر بڑھتا جاتا ہے، وہ جہاں کہیں جاتا ہے خدا اسے برکت بخشتا ہے۔ لکھا ہے کلام میں، تو جہاں کہیں جائے گا میں تجھے برکت دوں گا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو اس میں خدا پھر لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو کہتے ہیں، مکاشفہ 3 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ دیکھیں، نہ سرد ہے اور نہ گرم ہے، اس لیے خطرے میں ہے وہ شخص جو بڑھ نہیں رہا، جو ترقی نہیں کر رہا، یا تو وہ بالکل جانتا ہی نہ خداوند کی راہ کو۔ اگر اس نے جان لیا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، وہ چرچ میں آنا شروع ہو گیا ہے، کلیسیا میں ہے، تو اس کو ابھی بڑھنے کی ضرورت ہے، گناہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور سرگرم ہونے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ خدا ہمارے کاموں کو جانتا ہے۔ اور جو کوئی بھی سرد ہے یا وہ نیم گرم ہے تو وہ خدا کے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے، وہ خطرے میں ہے، وہ شخص خطرے میں ہے، اور خطرہ جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہے اور وہ اسے لے ڈوبے گا۔ جب کبھی ہم خداوند کی حضوری میں بڑھتے ہیں تو نیم گرمی کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، بالکل سرگرم ہونا ہے۔ اور جس طرح ہم نے یہ پڑھا، نیم گرم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ جس طرح سے خدا کا کام بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا داری بڑی مجبوری ہے جی، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو اسی لیے نیم گرمی اسی کا کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ میں دنیا داری بھی ساتھ چلاتے ہیں، اور سارے باقی کام بھی چلاتے رہتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک نیم گرمی ہے، اور نیم گرمی کو خطرناک بات یہ ہے کہ خدا اس کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے۔ بڑھنے کے لیے ہمیں ترسنا ہے۔ بائبل مقدس میں جیسے ہمیں زبور کی کتاب میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، زبور 42 اور اس کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ جب ہم خدا کے لیے ترسیں گے، جب ہم خدا کے پیاسے ہوں گے تو پھر ہم بڑھیں گے، پھر ہم سرگرم ہوں گے، پھر ہم خداوند میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، دوسری آیت میں، میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے، میں کب جا کر خداوند کے حضور حاضر ہوں گا۔ جب ہم پیاسے ہوتے ہیں، خدا کے کلام کے پیاسے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس میں بڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، بڑھنے میں جو اور ایک بات ہے وہ رکاوٹ ہے، وہ تلافی ہے۔ تلافی لوگ نہیں کرتے، بالکل، کسی سے معافی نہیں مانگتے۔ جیسے دیکھیں لوکا کی انجیل میں، مقدس لوکا کی انجیل اور اس کا 19ویں باب کی جب ہم دیکھتے 4 آیت میں لکھا ہے، پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اس راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، یہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور
अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। यसु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। निजात हासिल करने के ये लिए रूहानी बलोगत है। पर साहब बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया है, हम इस पर और मज़ीद बात करेंगे, लेकिन नाजरीन अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हुस्ना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज दूर दराज से खुदा के खादम पास्टर अजीज़ सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके वसीला से हम खुदा का मुकद्दस कलाम सीख रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले खुदा के खादम हमें बता रहे थे कि हमें खुदा के साथ वफादार रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह के फजल में और इरफान में बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम बढ़ते नहीं हैं तो फिर हम बौने रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, और रूहानी तौर पर कद में जब हम छोटे होंगे तो फिर इसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो खुदा के खादिम अभी हमें ज़कई की ज़िंदगी के ताल्लुक से ब्रेक से पहले ये बता रहे थे कि ज़कई अगरचे जिस्म में कद में छोटा था, लेकिन रूहानी बलूगत में वो बहुत बड़ा था, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश की। और फिर जब खुदावंद उसके घर में गए तो उसकी ज़िंदगी में एक वाज़े तब्दीली आई और वो रूहानी तौर पर तरक्की करता है। मज़ीद इस ताल्लुक से खुदा के खादम पास्टर अजीज़ साहब से सीखते हैं। जी पर साहब। जी शुक्रिया। तो हमने देखा ये जो हवाला पढ़ा गया, और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। यसु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। निजात उस शख्स के पास है, इसने तलाफी की है। तलाफी की बेशक। उसने, क्योंकि ये टैक्स कलेक्टर था, ये नाजायज लेता था, ये नाहक लोगों से लेता था। उसने कहा कि अगर किसी का नाहक लिया है तो चुगना अदा करता हूं। अगर हमने इससे पहले अगर किसी का नाहक लिया है तो उसको अदा करें, चुगना अदा करें, उसको वापस करें, तो हमारी तलाफी होगी, जिससे हम बढ़ सकते हैं। ये भी एक रुकावट है कि हम तलाफी नहीं करते, हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बढ़ नहीं सकते। कई दफा हमारी जिंदगी में कई एक छोटे छोटे ऐसे गुनाह हैं जिनकी वजह से हम बढ़ नहीं सकते। गज़ल गज़लात की किताब जब हम देखते हैं तो उसमें गज़ल गज़लात की किताब और उसका दूसरा बाब, गज़ल गज़लात और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो और उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान को खराब करते हैं। जी। ऐसे गुनाह छोटे छोटे हमें नजर नहीं आते, हमें फील भी नहीं होता, लेकिन वो गुनाह है। उनको हमने अपनी जिंदगी से दूर करना है ताकि हम बढ़ें, हम तरक्की करें। कई दफा जब भी कभी दरवाजा खटखटाया जाता है तो वो कहते हैं, कह दो पापा घर पे नहीं है जी। तो ये छोटा सा गुनाह है जो किसी को फील नहीं होता, लेकिन ये गुनाह हम अपने बच्चों से करवा रहे हैं, बच्चों से करवाते हैं, और ये उनको आदत एक डाल रहे हैं कि गुनाह कैसे किया जाता है, गलत दी जा तो ये भी एक गुनाह है। जो कोई भी छोटे गुनाह हो सकते हैं, और ऐसे गुनाह भी होते हैं जो पोशीदगी में किए जाते हैं, उनको भी दूर करने की जरूरत है। ज़बूर की किताब जब हम पढ़ते हैं, ज़बूर 19 और उसकी 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तू मुझे, ज़बूर 19 और उसकी 12वीं आयत, कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है, तू मुझे पुशीदा ऐबों से पाक कर। यहां पर देखें, खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि कौन अपनी भूल चूक के गुनाहों को जान सकता है, और वो दुआ कर रहा है कि खुदा तू मुझे पुशीदा ऐबों से पाक कर। ऐसे गुनाह जो पुशीदगी में इंसान करता है, जो छुप कर करता है, जो एक अलग कमरे में करता है, जो किसी का ख्याल है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन खुदा गिनती में नहीं लेके आता, देख रहा है। तो इसलिए
पोशीदा गुनाहों की वजह से भी इंसान बढ़ नहीं रहा, ईमानदार बढ़ नहीं रहे, तरक्की नहीं कर रहे, खुदा के फजल में नहीं बढ़ रहे। इसलिए पालूस हमें कहता है कि हम बढ़ें और तरक्की करें। और मगरूरी जो है वो भी एक गुनाह है, गरूर, घुमंड। किसी को जब कुछ मिल जाता है तो वो गरूर में, घुमंड में आ जाता है और बड़ा फख्र करता है कि मैंने एक बड़ा तीर मार लिया है, तो मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। जी 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 जी। तो हो सकता है उसको गाड़ी मिल गई है, बंगला मिल गया है, या कोई अच्छी नौकरी मिल गई है, तो फख्र करता है, वो गरूर में आ जाता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यकूब का खत 4 बाब की जब हम 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जब कभी हम सरफराज होते हैं तो हमें आजिज होने की जरूरत है। बिल्कुल। जब खुदा ने सरफराजी बख्शी है, अच्छी जॉब बख्श दी है, गाड़ी बख्शी है, बंगला दिया है, रुपया पैसा बख्शा है, तो हमें आजिज होने की जरूरत है, ना कि फख्र करने की जरूरत है, ना कि मगरूर होने की जरूरत है, क्योंकि मगरूरों का मुकाबला खुदा खुद करता है। और ये बात जो है ये तो कई दफ़ा आम हमारे मुशाहदे की है जी। जब कुछ नहीं पास होता, सबकी इज्जत भी होती है, सबके साथ प्यार भी होता है, शायद उस वक्त हमें ज़रूरत होती है जी जी। लेकिन जैसे ही कोई थोड़ी सी तरक्की हो जाती है, चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर हम कई दफ़ा ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने अजीज़ों का तारुफ भी नहीं करवाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाप कोई छोटी जॉब करता है ना या कोई छोटा काम करता है तो उसका बताते ही नहीं है कि मैं उसका बेटा हूँ। जी जी जी। तो हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें इस बात को अपने ज़हन में रखने की जरूरत है। ये हमारी रुकावट है तरक्की में। जी पास्टर साहब, इसी के यकूब 4 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, खुदावन के सामने फरोतनी करो। बेशक फरोतनी के साथ रहना है, हलीमी के साथ, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। जब हम फरोतनी के साथ रहते हैं, जब हम आजिज़ी के साथ रहते हैं, तो खुदा हमें सर बुलंद करता है। हमें एक और बात है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, वो है बुरी सोबतें। कलाम मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, 15वें बाब की 33वीं आयत में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ऐसे ही बुरी सोबतें, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देता है। अगर कोई शख्स शराबी नहीं है और वो शराबियों के साथ बैठता उठता है, तो वो यकीनन एक कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो एक दिन वो भी शराब पीना शुरू करेगा, उसी सिलसिले में शामिल हो जाएगा। जी जी, वो उनमें शामिल हो जाएगा। बाइबल की ये आयत है और ये हकीकतें हैं जो कलाम मुकद्दस में है। बाइबल में लिखा है, जमीन और आसमान तो टल जाएगा लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। तो ये खुदा के कलाम की बातें जो कभी नहीं टलेंगी। इसलिए हमें उन सोबतों को छोड़ना है जो गलत हैं, बेशक, जो हमें बुराई की तरफ ले जा रही हैं। अगर हम चोरों के साथ बैठते हैं तो चोर उनकी दोस्ती को छोड़ना है। अगर हमारी सोबत जैसी भी है, अगर आपको पता लग गया कि वो लोग गलत हैं, तो उनकी सोबत छोड़ दे। खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के लोगों के साथ अपनी सोबत रखे ताकि हम बढ़ते चले जाएं। और दुनियादारी को, हर उस चीज को छोड़ना है जो गलत है, फिर हम खुदा और जो हमें तरक्की करने, क्योंकि ये तरक्की करने में रुकावटें हैं। जी जी। और अगर हमने खुदावन में बढ़ना है तो इन बुरी सोबतों को छोड़ना है। खुदावन के फजल और इरफान में अगर बढ़ना चाहते हैं, जी जी बिल्कुल, खुदावन के फजल में और इरफान में और रूहानी तौर पर तरक्की करनी है, तो फिर हमें इन सारी बुराइयों को छोड़ना है और सच्ची तौबा करके खुदावन के पास आना है ताकि हम उसमें बढ़े। देखिए मेरे साथ एक और 1 तीमुथियुस उसका 5वां बाब, 1 तीमुथियुस 5वें बाब की 6 आयत में लिखा है, मगर जो ऐशो इशरत में पड़ गई हैं वो जीते जी मर गई हैं। जी जी। ऐशो इशरत में ऐसे भी लोग हैं जो ऐशो इशरत में पड़ गए हैं, ऐसी खवातीन हैं जो ऐशो इशरत में पड़ गए हैं, पड़ गई हैं। और लिखा है वो जीते जी मर गई हैं। वो मर गई हैं, उन्होंने अपने आप को मरने के लिए इब्लीस के हवाले कर दिया हुआ है। बिल्कुल। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। 1 यूहन्ना जब हम देखते हैं तो उसमें ये हमें हवाला मिलता है, 1 यूहन्ना 2 बाब, 1 यूहन्ना और 2 बाब की 15वीं आयत में लिखा है,
ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। जो भी कोई है अगर वो दुनिया से मोहब्बत रखता है तो उसमें फिर बाप की मोहब्बत नहीं है, उसमें खुदा का फजल नहीं है, वो फिर बढ़ नहीं सकता। वही शख्स बढ़ेगा जिसने सच्ची तौबा करके खुदा के कलाम से पैदा होकर और पुरानी इंसानियत को छोड़ दिया है, गुरूर को छोड़ दिया है, बुरी सोबतों को छोड़ दिया है और सरगर्मी हासिल की है, वो खुदावन में बढ़ेगा और वही खुदावन में तरक्की करता चला जाएगा। वो शख्स नहीं बढ़ सकता जो दुनियादारी की चीजों में है, जो दुनिया के कामों में फंसा हुआ है, जो अपनी चीजों पर फख्र करता है, जो ये समझता है कि मैं सरगर्म रहकर भी, मैं गुनाह करके भी जो है कायम रहूंगा, तो वो बढ़ नहीं सकता। जिस तरह हमने दरख्त की मिसाल सीखी है, दरख्त अगर काटा जाए तो वो बढ़ नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मुझ में कायम रहो तो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहोगे वो तुम कर सकोगे, फिर फल ला सकते हो। फल तब तक कोई चीज नहीं ला सकती, कोई दरख्त फल नहीं ला सकता जब तक अगर वो जड़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अगर वो दरख्त के साथ नहीं जुड़ा। जब दरख्त के साथ जुड़ेंगे, जब खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे, फिर हम बढ़ सकते हैं, फिर हम तरक्की कर सकते हैं। खुदावन के कलाम पे खुदा की बरकत। बहुत शुक्रिया पाजी साहब। अजीज़ नाजरीन, आज हमने खुदा के खादिम के वसीला से अपनी रूहानी बलूगत के लिए बहुत सी चीज़ों को सीखा है, और ख़ास जो मैं आज आपके सामने इस सारी गुफ्तगू के लुबे लुबाब के तौर पर रखना चाहता हूँ, वो ये है कि जो चीज़ें हमें खुदावंद यीशु मसीह से कट ऑफ कर देती हैं, हमें जुदा कर देती हैं, उनको हमें छोड़ना है। और उनका बड़े अच्छे तरीके से पाजी साहब ने आज उनके बारे में निशानदही भी की है और सिखाया भी है कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर खुदावंद के हुजूर रूहानी बलूगत में बढ़ सकते हैं, खुदावंद के इरफान में बढ़ सकते हैं और उसकी कुर्बत में बढ़ सकते हैं। सो खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ नाज़रीन, आए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। जो भी इस वक्त हमें नाज़रीन देख रहे हैं, किसी भी बीमारी में, किसी कमज़ोरी में, किसी मुश्किल में गिरे हुए हैं, तो सब खुदावंद के हुजूर ईमान से मुत्तफिक होकर दुआ करें ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा दिखाए और आप खुदावंद के नाम की गवाही दें। आए हम अपने सर झुकाएं और दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, तू जो नहायत ही बुजुर्ग और कादर खुदा है, जो हमें बारहा अपने कदमों में आने के मौके फराहम करता है, आपके बेहद शुक्रगुजार है आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए जिसमें खुदा तूने अपने खादिम को हमारे लिए मुहैया किया और हमने तेरे मुकद्दस कलाम को सीखा है। हमें तौफीक बख्श दे कि अपनी ज़िंदगी से उन सारी बातों को निकाल दें जो हमारी रूहानी तरक्की में रुकावट का बायस है। हमें तौफीक बख्श कि इस कलाम पर अमल करके तेरे नाम के वसीला से 100 गुना फल लाने वाले हों। ए कादिर मुतल्लिक़ खुदा, अजीज़ नाज़रीन में जितने लोग किसी भी बीमारी में, मुश्किल में घिरे हुए हैं, अपने पाक बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुकम्मल तौर पर शिफा अता फरमा। अबलीस के बंधन तेरे नाम से टूट जाएं, तेरे लोग आज़ाद और बहाल हों, शिफा पाएँ, बरकत पाएँ और तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का बायस बने। ए पाक खुदा, होशना टेलीविज़न के लिए, इसके ऑनर्स के लिए और पाक खुदा इसकी सारी टीम के लिए आपके हुजूर से बरकत और सलामती चाहते हैं। इल्तिजा करते हैं कि इस चैनल के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां आपके कदमों में आ जाएं और लोग बरकत पाएं और तेरे नाम की सताइश हो। ए कादिर मुतल्लिक़ खुदा, हमारी इस वक्त मिन्नत, दुआ, इल्तिजा और मनाजात को सुन और कबूल फरमा। मसीह खुदावंद के पाक और मुकद्दस नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें इस खुशखबरी को सुनते हुए कि अब आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वहाँ से भी खुदा का कलाम सीख सकते हैं। इसके साथ साथ होशना टेलीविज़न का ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उससे भी होशना टेलीविज़न की सारी नशरियात को देख सकते हैं। सो देखते रहें होशना टेलीविज़न।